Okay, started. All right. Let's take a moment to pray, and then we'll start our class. आइए ये समय प्रार्थना में हम जाएंगे, उसके बाद में अपने क्लास को शुरू करेंगे। Father, we give you thanks once again परमेश्वर, फिर से एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं। that we could have the opportunity to study and learn. प्रभु, आपने हमें मौका दिया ताकि हम सीख सके। And Lord, we submit ourselves to you. प्रभु, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। And Father, we invite the presence and the ministry of the Holy Spirit. हम तेरी उपस्थिति को प्रभु आमंत्रित करते हैं। And the things that we learned, God, we pray that you will write these truths on our hearts. जो हम सीख रहे हैं प्रभु सत्य को, प्रभु हमारे हृदय के पटियों पे तू लिख। Open our minds to understand. हमारी बुद्धि को तू खोल ताकि हम समझ सके। And Father, prepare us for the future that you have for us. प्रभु हमें तैयार कर प्रभु राजा भविष्य के लिए। We commit ourselves, we commit the ministry of your word into your hands. परमेश्वर, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं इस वक्त। We thank you for the work of your Holy Spirit. तेरे पवित्र आत्मा के कार्य के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। All right. So, did you get a chance to look at chapters 3 and 4 क्या yesterday after classes? क्या आपको कल क्लास होने के बाद मौका मिला कि आप तीसरे और चौथे अध्याय को देखने के लिए मौका मिला? हाँ या नहीं? Did you not? अरे हाँ या नहीं? Some of them no, some of them yes. Okay. Please try to revise what we study in class प्रभु in the evening. कृपया करके आप दोहराइए जो आपने कल सीखा। जब क्लास हो जाएगा तो दोहराइए। Just quickly go over your notebook or the book that you have. Just quickly go over it. So अब जितने भी सीखा उसको पुनरावृत्ति कीजिए आप और देखिए कैसा होता है। All right. Let's go to chapter number 5. आइए हम अध्याय 5 पे जाएंगे। So, as we talk about marriage and family, we are now going to talk more on how to conduct ourselves within the marriage and within the family. तो हमने कल सीखा था कि किस तरह से परिवार या विवाह के अंदर किस तरह से हमारा व्यवहार या रवैया होना चाहिए। So a lot of the things that we are going to be talking about now, obviously it's not something you are doing right now in your life for most of you. तो आम तौर पे ये वो कार्य ने जो आप अभी कर रहे हो उसके बारे में नहीं, but it's for your future. Once you get married, these are important things. लेकिन ये आपके भविष्य के लिए जब आप विवाह होगा तब की बात है। Right? But you can start preparing yourself right now. लेकिन आप खुद की तैयारी अभी से कर सकते हैं। Work on these things in your life starting from now. So इस बातों पर अभी से आप कार्य करना शुरू करें। We want to talk about in chapter 5, we talk about attitudes, temperament and behavior. और हम इस बारे में बात करना चाहते हैं प्रवृत्तियां, स्वभाव और आचरण। Attitudes have to do with our perspectives, how we see things, how we think about things, how we react to things. तो प्रवृत्तियां जो है ये दृष्टिकोण के बारे में बात करता है। प्रवृत्तियां का अर्थ की रवैया, ये इसके बारे में बात करता है, किस तरह से आप देखते हो, किस तरह से आपका नजर है, दृष्टिकोण आपका। Our temperament has to do with what kind of person we are. Some people are very jovial, they're very outgoing. Some people are very quiet, very reserved. They like to be by themselves. God has made us all with different temperaments. तो हम देखते हैं कि स्वभाव जो है वो इस बारे में बात करता है, आपके बारे में स्वभाव बात करता है, किस तरह से आप आनंदित है। कोई लोग बात करने वाले होते हैं, कोई लोग निराश शांत रहते हैं, कोई लोग अकेले बैठना पसंद करते हैं। ये वो स्वभाव के बारे में बात करता है। दूसरा, And behavior, of course, is how you conduct yourself, how you communicate, how you go about your day-to-day life. तो आचरण की जो बात है वो आपके व्यवहार के बारे में बताता है कि क्या रोजमर्रा की जिंदगी में आप किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हो। Now, why is this important? क्यों ये महत्व रखता है? Because क्योंकि in marriage, there are the two people, husband and wife,
are very different people. विवाह के अंदर पति और पत्नी ये दोनों भिन्न है। In heaven, there are no Xerox machines. और स्वर्ग के अंदर कोई जेरोक्स मशीन नहीं है। So God is not making copies of the same person. और परमेश्वर एक ही कॉपी को नहीं छाप रहा है। Two people can be in the same environment. That means, example, they could be growing up in the same church. They could listen to the same ministry. They could be worshiping there. But as individuals, they could be very different. दो व्यक्ति लोग एक ही वातावरण में रहते हैं, एक ही चर्च में जाते हैं, एक ही माहौल में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो दृष्टिकोण वो अलग होता है। So sometimes you think, oh, I married somebody from my same church. I expect them to be just like me. And once you get married, you'll find out they're totally different from you. आप ऐसे सोचते हो, जिस चर्च में आप कलीसिया में जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं उसी चर्च की कलीसिया के किसी सदस्य से विवाह करूंगी ताकि उसका भी विचार मेरे जैसा हो। जब आपका विवाह हो जाता है तो उसका दृष्टिकोण बहुत अलग होता है, भिन्न रहता है। Why? क्यों? Because each person has their own mix of attitude, temperament, and behavior. तो क्यों हर एक का प्रवृत्ति अलग होता है, क्योंकि उसके प्रवृत्ति, उसके स्वभाव, आचरण, ये सब मिलावट के कारण, उनके अंदर मिलावट के कारण वो अलग रहते हैं, भिन्न रहते हैं। For example, if you see this bottle of water, उदाहरण के तौर पर जब हम बोतल को देखते हैं, some people will be so happy there is at least so much water. कुछ लोग संतुष्ट रहेंगे और देखेंगे कि बोतल में पानी है। Some people will see this bottle, they get very anxious. Oh, we must fill up the bottle. There's not enough. So much of water is missing. और कुछ लोग चिंतित हो जाते हैं कि इस बोतल के अंदर जल बहुत ही कम है, Because there's so much gap there. तो यहाँ पे देखते हैं कि बहुत क्षमता में वो खाली है। Some people look at this bottle and say, no, this bottle not enough. We need 5 more bottles. तो कुछ लोग ये बोतल को देख के कहते हैं कि नहीं, हमें और भी 5 बोतल चाहिए। What will you do once this bottle is over? क्या करोगे आप अगर ये पानी खत्म हो जाएगा तो? So, looking at the same situation, people can look at it differently or react differently. एक ही स्थिति को देखते हुए लोगों का अलग अलग परिणाम आ जाता है उनके आचरण की वजह से। Some of us are visionaries. कुछ लोग दूरदृष्टि वाले लोग रहते हैं। We are able to see things that are not there. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसे चीजों को, वस्तुओं को देखते हैं जो है नहीं। Some of us are people who only see what is there. और कुछ लोग जो ऐसे होते हैं वो केवल वर्तमान में देखते हैं कि यहाँ क्या है। So suppose you and your wife, or your future wife, you're standing in front of a big open area, land. आप और आपके पत्नी, शायद आपके भविष्य की पत्नी, एक खुले मैदान में अगर आप खड़े हो, You're standing there, you're saying, oh, I can see a very big church here. आप कहेंगे, अरे मैं बहुत बड़ी कलीसिया को देख रहा हूँ। Big, many building, thousands of people are gathering. Oh, so it's going to be so wonderful. बड़े बड़ी इमारत को मैं देख रहा हूँ जहाँ पे 1000 लोग आ रहे हैं। Your wife is standing there. आपकी पत्नी वहां पे खड़ी है। He says, there are so many stones on this field. वो कहने लगेगी, कितने सारे पत्थर इस जगह पर। There are maybe big holes over here, big hole over there. यहाँ पे खड्डा है, वहां पे बड़ा खड्डा है। Land is not flat, land is going down. जमीन जो है वो सीधा ही नहीं है, वो आकार उसका थोड़ा विचलित है। Both of you are seeing the same lands. लेकिन दोनों लोग एक ही भूमि को देख रहे हैं। But what you're seeing is very different. लेकिन जो आप देख रहे हैं वो बहुत अलग है। Why? क्यों? Because you're different people. क्योंकि आप दोनों अलग व्यक्ति है, भिन्न व्यक्ति है। One person is a visionary. They like to see things that are not there. एक व्यक्ति जो होता है दूरदृष्टि वाला होता है, वो देखता है जो नहीं है। One person is very practical. They see what is there. और दूसरा जो व्यक्ति होता है बहुत व्यवहारिक होता है, वो ये कहता है कि अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। And we need all kinds of people. हमको हर प्रकार के लोग चाहिए। The important thing is to understand each other. तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि एक दूसरे का समझना जरूरी है। We cannot insist that the other person must see it the way we are seeing it. हम उस व्यक्ति पे दबाव नहीं, अपने जीवन साथी पर दबाव नहीं डाल सकते कि वही देखे जो हम देख रहे हैं।
Husband will tell wife, why can't you see? Why can't you have a vision? Why can't you see what is not there? पति पत्नी से नहीं कि तू दर्शन क्यों नहीं देख पा रही, तू लोगों को क्यों नहीं देख पा रही. Wife is saying, hey, please, before you can build your big building, there's all these things here. तो पत्नी कहती है आप अपने इमारत बांधने से पहले देखो यहाँ पे कितना पत्थर है. Right? So we need both. हमको दोनों चाहिए. Right? The important thing is we must understand each other. महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको एक दूसरे को समझना है. Are you understanding what we say? क्या आपको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? It's not that one person is bad or one person is better. It's just that God has made us all different. इसका अर्थ ये नहीं कि एक व्यक्ति अच्छा है और एक व्यक्ति उसे और भी अधिक अच्छा है या बुरा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने, इसका अर्थ ये नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसको अलग अलग प्रकार से, मतलब अलग इच्छाएं से उनको बनाया है. So in marriage, विवाह के अंदर we want to understand, the importance of attitude, temperament, and behavior. तो विवाह के अंदर ये बहुत महत्व रखता है, प्रवृत्तियां, स्वभाव और आचरण. Now, all of us, हम सभी लोग as believers, विश्वासी होने के नाते in any situation, किसी भी स्थिति में we are called to have a Christ-like attitude. किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि मसीह के समान हमारी प्रवृत्ति, मतलब हमारा स्वभाव होना चाहिए. All of us. सभी लोग. What kind of an attitude? किस तरह का हमारा प्रवृत्ति होना चाहिए? Like किस तरह? Christ. यीशु मसीह की तरह. Right? A Christ-like attitude. यीशु मसीह की तरह हमारी प्रवृत्ति होना चाहिए. In whatever situation, in any situation. किसी भी स्थिति में क्यों ना हो. And that, of course, applies to marriage. ये विवाह में भी ये मतलब विवाह में भी ये लागू होता है. So put your right hand up. आपका सीधा हाथ उठाए आप. Please put your right hand up. दाहिना हाथ उठाएंगे हम अपना. And say this with me. I must have a Christ-like attitude in every situation. सब लोग कहे कि मेरा हर स्थिति में मेरा व्यवहार मसीह की तरह हो. I'll say it one more time. I must have a Christ-like attitude in every situation. हम कहेंगे मेरा रवैया हर स्थिति में मसीह की तरह हो. Okay? That is how we should behave and conduct ourselves as believers. ये वो है, हमको इस तरह विश्वासी होने के नाते हमको मसीह की तरह व्यवहार करना पड़ता है. So let's look at what this Christ-like attitude हम देखते हैं is. कि मसीह की तरह, मसीह के समान प्रवृत्ति होने का मतलब क्या है. Philippians chapter 2, verses 3 to 5. हम देखते हैं कि फिलिपी 2:3 से 8 तक. क्या नहीं? Yes, please. विरोधी या झूठी बड़ाई के कुछ ना करो, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो. हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन आपने आपको ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली. So notice in verse 5, it says the attitude or the mind that you should have should be the same as Jesus Christ. यहाँ पे लिखा गया जैसा मसीह का स्वभाव था आपका स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए. Okay? So the Bible is telling all of us as believers, have the same attitude like Jesus. बाइबल हमें हर एक विश्वासी को ये बताती है कि हर एक को यीशु मसीह का स्वभाव के जैसा उनका भी स्वभाव होना In जरूरी है. every situation, हर एक स्थिति में our attitude, हमारा जो स्वभाव है, that is our mind, मतलब हमारा दिमाग, our perspective, हमारे विचार, how we see the situation, हम किस तरह से स्थिति को देखते हैं, how we react to the situation, हम किस तरह प्रतिसाद देते हैं किसी स्थिति के दौरान, it must be the same as Jesus Christ. हमको उसी तरह व्यवहार करना, उसी तरह हमारा स्वभाव होना चाहिए जिस तरह यीशु मसीह का है. Now, what attitude did Jesus have? तो यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? So he's saying in that context, he says, don't do anything from selfish ambition. Verse 3. यहाँ पे कहा गया है कि अपने स्वार्थी स्वभाव से ऐसा कुछ ना करो. Don't do things for your own self-interest, for your own selfish gain. तो वहां पे ऐसा लिखा है कि स्वार्थी रीति से या स्वयं की बढ़ाई के लिए ऐसा कुछ भी मत करो.
Be humble towards one another कि आप एक दूसरे के साथ नम्र बनो, दीन बनो, and look out for the interests of the other person. और दूसरे का दिलचस्पी में ध्यान रखो कि मतलब उसको किस में रुचि है। So that's the attitude. वो हमारा स्वभाव होना चाहिए। What is good for the other person? तो हमको ये सोचना जरूरी है, दूसरों के हित के बारे में सोचना जरूरी है। Walk with humility तो हमको नम्रता और दीनता के साथ चलना है, and don't do it for your own selfish interest. तो इसलिए मत करो क्योंकि आपको रुचि है, मतलब स्वार्थी बनकर कोई कार्य मत करो। So that's the attitude. वो आपका स्वभाव होना चाहिए। You think about this in the context of marriage. तो हम देखते हैं कि ये जो बात है विवाह के संदर्भ में हम देख सकते हैं। Right? Suppose husband, wife, they want to go out the evening. ऐसा सोचो कि पति पत्नी एक बार शाम के वक्त उन्हें बाहर जाना होता है। Husband really wants to eat pav bhaji. और जो पति है उसको पाव भाजी खाना होता है। Really wants to eat. He hasn't eaten it for some time. तो उसने बहुत समय हो गया पाव भाजी नहीं खाया, He wants to eat. उसको खाना है। He's hoping his wife will also say she wants to eat. वो इस तरह आशा रखता है कि उसकी पत्नी भी बोले कि हाँ हमको पाव भाजी खाना है। So he asks the wife, what would you like to eat? वो कहता है उसकी पत्नी को आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? She says, I want to eat idli. वो कहती है मुझे इडली खाना है। Friend is, oh. वो कहेगा अरे। Now the husband can insist, no, I want to eat pav bhaji, so we are all going to eat it. उसका पति उसको बाध्य करेगा कि आपको नहीं हमको पाव भाजी ही खाना है, ऐसा भी कर सकता है। But he remembers, the Bible says, don't look out for your interest, look out for what interests the other person. लेकिन अचानक उसको बाइबल का वचन याद आता है कि अपने हित के बारे में न सोचो, दूसरे के हित के बारे में सोचो। So you want to do what is in the other person's interest. तो हमको वो करना है दूसरे व्यक्ति के प्रति कि उसको किसमें रुचि है, दिलचस्पी है। So even though he may have his desire, so okay, let's go eat what you like today. अगर उसको पाव भाजी खाने की भी इच्छा होगी तो वो क्या करेगा, अपनी पत्नी की इच्छा को प्रथम स्थान देगा। Are you understand? आपको समझ में आ रहा है? Yes or no? हाँ या It's a ना? small example. ये छोटा उदाहरण है। Yeah, but you get the point. क्या आपको समझ में मैंने कहने का मतलब क्या है? That in marriage we have to have that kind of attitude. विवाह के अंदर हमें इस तरह से स्वभाव होना जरूरी है। Not only what pleases me and is my own selfish interest, but hey, what is the other person's interest? विवाह के अंदर ऐसा नहीं कि मुझे क्या संतुष्ट करता है, हमें यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे जो साथीदार है उसको क्या संतुष्ट करता है। What does the other person like? उसको दूसरे व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है, What is good for them? उसके लिए क्या भला है। Right? So you're having that attitude. आपको वो स्वभाव होना चाहिए। And he says, have a humble attitude. वो कहता है दीनता का मतलब स्वभाव होना चाहिए। I mean, you're not insisting on your own rights. तो आप उनको अपने अधिकार से उनको बाध्य में नहीं डाल रहे हो। You're willing to yield, you're willing to submit, you're willing to surrender. आप उनके आज्ञा सुनने के लिए तैयार हो, अपने आप को समर्पण करने के तैयार हो, आप दीन होने के लिए तैयार हो उसके सम्मुख। So he says, look at Jesus. This is now Philippians 2:6-8. Look at Jesus, though he was God, he humbled himself, he gave up everything, he died on the cross, he became obedient to the Father. So it's talking about that great example of humility and obedience. तो यहाँ पे देखते कि दीनता का सबसे बड़ा उदाहरण कि यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप लिया और उसके बाद में मनुष्य के समान हुआ बना और मृत्यु तक पिता का आज्ञाकारी रहा और मृत्यु भी सह ली। So this is just an example of the attitude that you have. तो ये एक उदाहरण है स्वभाव जो हमें होना चाहिए। Now, how can you start practicing that now? अब किस तरह से इसको वर्तमान में अभी स्थिति में कैसे लागू कर सकते हैं? Even in your friendships, even as you relate to one another. तो यहाँ पे देखते हैं एक तरह से एक दूसरे से जब जुड़ रहे आपके मित्रता में इस स्वभाव को किस तरह से अभी हम लागू कर सकते हैं? Learn how to be humble. Learn how to
put the other person's interest. तो अभी सीखो किस तरह से हमें दीनता में चलना चाहिए। अभी सीखो कि किस तरह से दूसरों के हित के बारे में हमें सोचना है। You know, just in everyday life. रोजमर्रा की जिंदगी में हमें सोचना जरूरी है। You go up to get your tea or your coffee. अब जाएंगे चाय और कॉफी पिएंगे, So you let the other person go, please go ahead. तो आपको क्या करना है? दूसरे व्यक्ति को बोलना है अब जाइए। Now all of you are standing and saying everybody else. अगर आप खड़े, सब लोग बोलेंगे जाइए जाइए। The point is, you're not insisting on your own rights. तो इसका मतलब ये है कि आप अपने अधिकार से लोगों को बाध्य नहीं कर रहे हो, मतलब उन पर दबाव नहीं डाल रहे हो। You're not trying to compete with the other person and so on. आप उसके साथ में स्पर्धा नहीं कर रहे हो। So even in everyday life, you can practice being humble, looking out for the other person's interest, and being submitted. सो दैनिक जीवन में हमें ये ध्यान रखना जरूरी है, हमें दीनता में चलना है, दूसरों के हित के बारे में सोचना है, उनकी रुचि का भी हमें ध्यान रखना है। And then when you get married, it'll be very easy to do the same thing in your marriage. तो आप इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो जब आपका विवाह होगा उस समय में आपको आसान पड़ेगा। You understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? Yeah. But this is the attitude we must have. तो ये जो है स्वभाव हमें होना जरूरी है। And some other things, for example, 1 Thessalonians 5:16-18. सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा यही है। So this is again the attitude that we carry. Be joyful in everything. In everything you give thanks. आपको ये स्वभाव होना चाहिए, आपको हमेशा आनंदित रहना चाहिए। In every situation, हर स्थिति में you choose to rejoice or be joyful in God. हम ये चुनाव करते हैं कि हर स्थिति में आनंदित रहने का। This is something you can start practicing now in your life. तो आपको अभी से इसका अभ्यास आप कर सकते हो। And then you can do that once you get married. और आपको आसान होगा जब आपका विवाह होगा, तो ये अभ्यास को जारी करने के लिए आपको आसान होगा। And that will be such a blessing to your marriage. और ये जो होगा बहुत आशीष का कारण होगा आपके Because विवाह के लिए। in life, there may be some times when things are up and down and things are difficult, challenges, all kinds of things और happen. जीवन के अंदर हम देखते हैं, जीवन शैली में देखते हैं, कभी जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आता है, कभी कसौटी आते हैं, कभी चुनौती आते हैं, लेकिन उस समय आपको ये आसान होगा अगर आपका सब ऐसा रहा तो। But when you know how to be joyful and be thankful in every situation, even in your marriage, it will be like that. लेकिन आप अगर धन्यवाद देना जानते हो, आप हर स्थिति में आनंदित रहना जानते हो, तो आपका जो विवाह होगा वो बहुत सुंदर होगा। Then your spouse, your husband, your wife will be happy to be around you because you are somebody who is lifting up the spirit, who is still joyful even in difficult आपको times. जो साथीदार होगा वो खुश होगा, वो कहा कि नहीं, मेरा साथीदार जो मुझे उत्साहित करता है, मुझे मतलब प्रोत्साहन देता है। Look at Philippians chapter 2, verse 14 and 15. तो हम देखते कि फिलिपी 2:14-15 सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष भोले होकर टेढ़े और हठी लोगों के बीच में परमेश्वर का निष्कलंक संतान रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत के जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। Do everything without complaining or arguing. बिना शिकायत के, बिना कुड़कुड़ाए हर एक काम को किया करो। So, sweep the floor, wash the dishes, go shopping, grocery shopping, do everything without complaining or arguing. झाड़ू मारना, भांडी धोना या बाजार से कुछ किराना लेके आना, ये सारे बात अब बिना कुड़कुड़ाए, बिना शिकायत के आप करो। You say, but I am such bada pastor. आप बोलेंगे आई एम ए बिग पास्टर, I won't sweep the floor. मैं झाड़ू नहीं मारूंगा। Bible says do everything बाइबल कहता है कि सब कुछ आपको करना है without complaining or arguing. और बिना कुड़कुड़ा के, बिना शिकायत के। So you have that attitude. आपको वो स्वभाव होना चाहिए, I can do anything. मैं यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता I'll हूँ, do everything. मैं सब कुछ कर सकता हूँ, But no complaining, no arguing. बिना विवाद के, बिना शिकायत के। That should be your attitude. वो आपका स्वभाव होना है। Are you understanding? आपको समझ में आ रहा है? Doesn't matter who you are.
इसका आपको चाहे आप कोई भी क्यों ना हो. I remember some years ago, our team was traveling, and I think it was in what is it? In Orissa. We were ministering in some places in Orissa, मुझे एक बात याद आ रही है, जब कुछ सालों पहले की बात है, हम सेवकाई करने के लिए ओडिशा में जा रहे थे. and we had planned to have a meeting one evening meeting in a certain town. तो हमको एक टाउन के अंदर इनका मतलब मीटिंग था. So the whole team, we worship, all our people, we reached sometime in the afternoon. The meeting was supposed to start around 6 o'clock. तो हम लोग दोपहर में पहुंच गए और मीटिंग जो शुरू होने वाली थी वो शाम के 6 बजे थी. We went to the auditorium, हम जब ऑडिटोरियम में गए, and the whole auditorium was in a big mess. जब हम गए ऑडिटोरियम में देखा बहुत गंदगी पड़ी हुई थी. It seemed like the previous evening they must have had some big marriage or some big function, and people had thrown all kinds of rubbish inside the auditorium. Outside it was very dirty. और मुझे ऐसा लगता है शायद उसके पिछले दिन, पहले दिन विवाह हुआ था, वहां पे सब कुछ गंदगी पड़ा था, कागज, पेपर, बॉटल वगैरह ऐसा जो कचरा, कूड़ादान वही ऐसे पड़ा, छोड़ के चले गए थे बाहर और अंदर. We have reached in the afternoon, 6 o'clock meeting is going to start. We thought, we just have to go set up our equipment, do the sound check, and we can start the meeting. But the auditorium was so dirty. हमको ऐसा लग रहा था कि ऑडिटोरियम साफ सुथरा होगा, हमको केवल अभी जाना है और हमारा सेटअप वहां पे लगाना है, लेकिन वहां पे सब अस्त व्यस्त था. Very dirty. And the people, the people who are supposed to be taking it, we don't know where they are. और जो उसका देखभाल रखते थे उस ऑडिटोरियम का, वो वहां पे नहीं थे, हमें पता नहीं वो कहाँ है. What did we do? हमको क्या करना है फिर उस समय? All of us. हम सभी लोगों ने We started sweeping the floor, cleaning the garbage, wiping the chairs from the back to the front, whole team. तो पूरा जो टीम है इनका, वो लोग ने झाड़ू मारने लगाया, पोछा मारने लगाया, चेयर साफ कर रहे, पीछे से लेकर शुरू तक. This, we didn't say we can't do this. हमने ऐसा नहीं कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते करके. Take the broom, sweep. झाड़ू लिया और झाड़ू मारना शुरू किया, Clean. साफ करना शुरू Remove किया. the garbage. तो कचरा सब निकालना शुरू किया. All of us just did the work. हम सभी लोगों ने काम किया. Bible says, do everything without complaining or arguing. और बाइबल हमें सिखाता है कि बिना किसी विवाद के, बिना किसी कुड़कुड़ाहट के हर काम को किया करो. That's our attitude. वो हमारा स्वभाव होना चाहिए. Just do the work. आपको खाली काम करना है. It's nothing is below us. ये Our level of doing things. तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे स्तर से नीचे है. Are you understanding? आपको समझ में आ रहा है? That must be our attitude. वो हमारा स्वभाव होना चाहिए. And that's the attitude you bring inside your marriage. तो ये जो स्वभाव है आपको अपने विवाह में लेकर आना है. If your wife asks you today, if your wife says, today I'm not feeling so good, can you wash the dishes? Happily, I learned in Bible college everything I must do. अगर आपके पत्नी ने बोला आज मेरा तबीयत ठीक नहीं, क्या आप बर्तन को धो सकते हैं, तो आप उन्हें कहना हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बाइबल कॉलेज में मैंने सीखा है ये काम. Happily you do. आनंद में से आप करोगे. Because Bible tells us, have that attitude. You do everything. बाइबल कहता है कि आपका ये स्वभाव होना चाहिए, हर काम को आपको करना चाहिए. Are you understanding? आपको समझ में आ रहा है? But because this attitude is so important even in your marriage. ये जो स्वभाव है आपके विवाह में बहुत महत्व रखता है. Some days you must shock your wife. You tell your wife, you sit on the table, I will serve you food. कभी कभी अपनी पत्नी को कोई दिन अचंभित कर दीजिए, उसे कहे कि आज मैं तुझे खाना परोसूंगा. You sit. अब बैठिए, I'll cook. मैं खाना बनाऊंगा, I'll feed you. मैं तुम्हें खिलाऊंगा. Guys, you can do it. बच्चों आप कर सकते हो, पुरुष आप कर सकते हो. Yeah. Excited. So where did you learn? I learned it in Bible college. कहाँ आपने सीखा? मैं बाइबल कॉलेज में सीखा बोलना है. They said, do everything. यहाँ पे लिखा है सब कुछ किया करो, Without complaining, without arguing. बिना किसी विवाद के, बिना किसी कुड़कुड़ाहट के. Amen. आमेन. So that's the attitude we must have. ये स्वभाव हमको रहना जरूरी है, And that's the attitude we bring into our marriage. और ये जो स्वभाव हमारे विवाह में हमको लाना जरूरी है.
right? There are two paragraphs here यहाँ पे देखते हैं कि हाँ। दो पैराग्राफ है where we list out some good attitudes and also some negative attitudes. तो यहाँ पे दो पैराग्राफ देखते हैं, यहाँ पे कुछ भली बातों को दिखाया गया और कुछ गलत बातों को भी दिखाया गया. Think about the good attitudes. You can look at it. It talks about selflessness, humility, sacrifice, giving preference to the other, looking out for the other person's interest, being thankful, being gentle. Now, all these things are good attitudes. तो यहाँ पे लिखा गया किस तरह से जो भली बात है, दूसरे के बारे में भली होना, सौम्य रहना और बाद में सच बोलना, प्रार्थनाशील, धन्यवाद रहना, ये सारे भली बात को दर्शाता है. You also see all the negative attitudes in the यहाँ next पे देखते हैं paragraph. नकारात्मक बातें भी है उसके अंदर. Anger, arguing, blaming the other person, controlling, complaining, criticizing, lots of negative things that can disturb the marriage. तो बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है, जैसे कि क्रोध, घमंड, लड़ाई झगड़ा या फिर धूर्त, दाह, उसके बाद में लोभ, ये सारी बातें हम देख सकते हैं. Right? So we have to be careful what kind of an attitude we have. हमको in सावधान होना चाहिए कि हमारा marriage. स्वभाव कैसा है. Think about the person, think about a marriage where the wife or the husband, they don't trust each other. एक इस बारे में सोचो कि जीवन साथी एक दूसरे पे भरोसा नहीं रखते. Suppose one of the last example, husband receives a phone call. He talks something. Wife says, who called you? Who was it? Who were you talking to? What were you saying? उदाहरण के तौर पे अगर पति को किसी को कॉल आ जाता है तो पत्नी तुरंत पूछती है किसका कॉल था, कौन कर रहा है, क्या है, ऐसा मतलब पूछती है. Suppose, he's sending a message or she's sending a message. Husband goes, oh, what is it? Who you sent to? Who were you writing to? और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पत्नी या पति किसी को मैसेज करते तो पूछते किसको कर रहे हैं, कौन है, क्या है, ऐसा. They don't trust each other. क्योंकि एक दूसरे पे उनको भरोसा नहीं होता. If there's an attitude of distrust, suspicion, will that marriage be a good marriage? अगर आपके स्वभाव में विश्वास नहीं करना या फिर शक करना ऐसा स्वभाव होगा तो क्या वो विवाह आगे चल पाएगा? No. नहीं. That won't be a good marriage. वो अच्छा विवाह नहीं होगा. Right? Always being suspicious. तो हमेशा शक करना. So we have to bring in both sides, we have to have a good positive attitude in the relationship. दोनों बाजू से दोनों रिश्तों में सकारात्मक बातें होना जरूरी है. Now let's talk about temperament. We're talking about spirit controlled temperament. यहाँ पे हम देखते हैं कि आत्म नियंत्रण स्वभाव. Like we said, each one of us have different kinds of temperament. यहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक का अलग अलग भिन्न स्वभाव होता है. Some people are very, very friendly. They will go and talk to anybody. They will, even if they meet a stranger, they will say hello, give them a good smile, shake hand, be very happy. कुछ लोग हम देखते हैं कि उनका स्वभाव जो मित्रता पूर्ण होता है, वो मिलता है, हाय हेलो बोलता है, अनजान व्यक्ति से भी वो बात कर लेता है, मित्र बना लेता है. Some are very quiet, very reserved. Only if you go and say hello, what is your name? They'll tell you their name. Otherwise, they'll be by themselves. They won't talk to anybody. कुछ लोग बहुत शांत होते हैं, अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं. जब हम उनको जाके पूछते हैं हाय हेलो, तब वो उत्तर देते हैं. There's nothing wrong. It's just that people are different. कुछ गलत नहीं उसके अंदर, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा है, वो अलग है. They have different temperaments. वो अलग अलग स्वभाव के लोग हैं. Some people are very, very thoughtful. They like to think about things. They're always in deep in thought, and then they will act. और कुछ लोग जो है कुछ करने से पहले बहुत सोचते हैं, सोचने के बाद फिर वो कार्य को करते हैं.
Some people, they'll do something, then they'll think, what did I do? कुछ लोग ऐसा होता है कि वो कहते हैं फिर बाद में सोचते हैं कि मैंने क्या किया, So before they think, they speak or they do something. और सोचे बिना वो बोल देते हैं, उसके बाद में सोचने लग जाते हैं मैंने क्या कहा. So there are different temperaments, different way people go about their life. वो अलग अलग स्वभाव के लोग हैं. ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने अपने स्वभाव से भिन्न होते हैं. So think about that, right? When two people get married, अब सोचो जब दो व्यक्ति का विवाह हो जाता है suppose one person is very friendly और देखते हैं एक जो है वो मित्रता का स्वभाव का है and the other person is very quiet, very reserved, they get married. और दूसरा जो है एकांत स्वभाव का है, शांत स्वभाव का है, और दोनों का विवाह हो जाता है. So imagine the wife is a very, very friendly person. और पत्नी जो है वो बहुत मतलब मित्रपूर्ण व्यक्ति है, मतलब फ्रेंडली स्वभाव का. And the husband is very quiet, very reserved. और पति जो है वो शांत है, वो एकांत है. So they get married, then maybe they go to church. They go to church on Sunday. वो रविवार को सहभागिता में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं. Then wife is going talking to everybody. Hello, how are you? And okay, making friends with everybody. और पत्नी जो जाके सबसे बात कर रही है, हेलो हाय हाउ आर यू, ऐसा आप कैसे क्या करके ऐसे वार्तालाप कर रही है हर लोगों से. Husband is standing very quiet. और पति जो शांत से उभा है, खड़ा है. Then they go home. जब वो घर जाते हैं The conversation can go like this. Wife will say, oh, I met so many people. They were so wonderful. It was so nice. How many people you met? वार्तालाप इस तरह शुरू होता है, उनमें बातचीत इस तरह शुरू होती है, अरे मैंने बहुत लोगों से मिली, मैंने ऐसा बात किया वैसा बात किया, आपने कितने लोगों से मिला. So I spoke to 2 people. वो कहेगा अरे मैं केवल 2 ही व्यक्ति से बात किया. So for him, in the whole church, only 2 people. उसके लिए पूरे कलीसिया के अंदर केवल 2 व्यक्ति हैं. But the wife, she's met maybe 50 people, maybe 100 people. She's और made जो friends. पत्नी है वो शायद 100 लोगों से मिली होगी, 50 लोगों से मिली, सबसे मिली होगी शायद. Question. पहली बात, Is anyone better than the other? क्या इसमें से एक से बढ़कर एक है? क्या कोई है कि एक से उत्तम एक है इसमें? What do you think? आप क्या सोचते हो? एक से उत्तम एक है क्या इसके अंदर? Is one person better than the other? क्या एक आदमी दूसरे आदमी से बेहतर है क्या इसके अंदर? What do you think? आप क्या सोचते हो? नहीं. Doesn't mean one person is better than the other. इसका Because think about this. This wife may have met 50 people, but for 50 people, she only said, hello, how are you? Hope you have a good day. See you later. भले ही पत्नी ने 50 लोगों से मिली होगी, शायद ऐसे बोलती है हाय कैसे है आप लोग, कैसा है आपका शुभ दिन शुभ हो, ऐसा उसने बोला रहेगा, और उसके बाद में दूसरे व्यक्ति से मिली रहेगी. The husband may have met only 2 people. और पति जो है केवल 2 व्यक्ति से मिला. But with each person, maybe he was talking for 15 minutes, 20 minutes. And he heard, he had a very meaningful conversation. और देखो पति जो है केवल 2 व्यक्ति से मिला होगा 15 या 20 मिनट, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण वार्तालाप उनसे किया है. I understand. आपको समझ में आ रहा है? That means even though he met only 2 people, he had a very meaningful conversation with 2 people. हाँ, तो केवल उस 2 व्यक्ति से मिला, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण वार्तालाप किया है. Wife may have met 50 people, maybe 100 people, but with everyone, only one nice smile, happy, how are you, fine, see you later. पत्नी भले 50 या 100 लोगों से मिली होगी, खाली वो कोई मुस्कुराया होगा, हाय हेलो बोल के चला गया होगा. But that makes her happy. लेकिन उसका वो स्वभाव उसको आनंदित रखता है. And in one way, it's good because she has got to know all the different kinds of people that are there. She's made friends with many people. एक रूपक तौर से वो ठीक है, वो जाएगी सबसे मित्रता बनाएगी और सबको पूछेगी हाय बाय करके. So that is ठीक है. good in that way. वो उस रूप से वो अच्छा है. For the husband, he may have only spoken to people, but the good thing is he really got to know those 2 people. लेकिन ये पति ने केवल 2 व्यक्ति से बात किया, लेकिन ये 2 व्यक्ति को बहुत गहरे से वो जाना है. Now, what must we do? Appreciate each other's strengths.
तो हमें क्या करना है? दोनों के कुवत को क्या करना है? सराहना है। Husband shouldn't say, simply you went and met 50 people. What did you talk to? No use. He shouldn't criticize the wife. तो पति जो है पत्नी को ऐसा नहीं कह रहा, तू जाके 50 लोगों से ऐसे ऐसे मिली करके। And the wife shouldn't criticize husband. You only spoke to 2 people. What are you doing? पत्नी जो है पति की आलोचना न करे, अरे तूने क्या कहा, केवल 2 ही व्यक्ति से बातचीत की। No, appreciate each other's strengths. एक दूसरे का आदर करे, उनके बल का आदर करे। You understand? Yes or no? समझ में आ रहा है? That there is a good side to the different temperaments that people have. There's a good side to it. तो यहाँ पे एक अच्छी बात होती है कि दोनों के अंदर भिन्न स्वभाव है। Right? In one case, because of her very, her temperament, she's able to make friends with so many people. On the other side, because of his temperament, he's able to have very meaningful friendships, even though it's only with few people. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बाजू में शायद वो उसके स्वभाव के अनुसार वो 50 लोगों से वो मिल पाई, उनसे मित्रता उसने बना पाई। लेकिन दूसरा पहलू हम देखते हैं कि पति ने 2 ही लोगों से बात किया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात किया। Right? So appreciate the good side of each individual's temperament and attitude. हम दोनों को सराहना देना है, क्योंकि दोनों ने अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य किया। Instead of criticizing and putting the other person down. आलोचना करने के बजाय हमको उनको सराहना है। Ultimately, all of us must have a temperament that is controlled by the Holy Spirit. और आखिरकार यही बोलना चाहता हूं कि हम सभी का जो स्वभाव है पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित हो। We see this in Galatians 5 verses 22 and 23. Let's read that, please. तो हम देखते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे कामों का विरोध कोई भी व्यवस्था नहीं। So the Holy Spirit is dwelling in each one of us as believers. विश्वासी होने के नाते आपके हर एक के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। And what does he do in our lives? और वो क्या कर रहा है अपने जीवन के अंदर? He fills us with love and joy and peace. वो हमें प्रेम, आनंद, मेल से भर रहा है। So this is what we must exhibit ये in जो our है, lives. ये जो है हमें प्रकट करना है हमारे जीवन के जरिए। How we do it may be different in each one of our lives. हम कैसे करेंगे ये शायद लोगों के जीवन में अलग होगा। So for this wife who's very, very, very friendly, the way she might be showing love and the way she might be, showing joy and all of that, maybe she's meeting many, many people, talking to them, giving them words of encouragement or just cheering them up. और जो पत्नी का जो स्वभाव है शायद मित्रपूर्ण होगा, जाएगी, बातचीत करेगी, एक दूसरे को उत्साहित करेगी, बोलेगी हाय हेलो, उनका हालचाल पूछेगी, ये उस तरह वो कार्य करेगी। So through that, she's expressing love and joy and peace and kindness and meekness and goodness and temperance and faith. ऐसा करने से वो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे अपने स्वभाव को प्रकट करेगी। But the husband may be very more quiet, but yet through his very deep conversation with people, through that he is expressing love and joy and peace. In that way, he's expressing. और पति है वो शांत और एकांत होने के कारण वो अपने स्वभाव के जरिए प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, इस स्वभाव को वो अपने वार्तालाप के जरिए प्रस्तुत करता है। Right? So although our temperaments are different, we are all called to express the fruit of the Spirit. तो अगर हमारा स्वभाव अलग भी हो, लेकिन हम सबको इसलिए बुलाया गया है कि हम पवित्र आत्मा के फल को प्रकट करें। Our temperament must be controlled and under the influence of the Holy Spirit. हमारा जो स्वभाव है पवित्र आत्मा के प्रभाव के अंदर होना चाहिए। I understand. आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है, नहीं आ रहा है? Okay. Right? So, if I speak for myself, अगर मैं मेरे बारे में बात करूं, as a leader, लीडर होने के नाते, in a day there are so many decisions to be made. मैं लीडर होने के नाते बहुत सारे निर्णय मुझे लेने पड़ते हैं। In the church, there's many things. There's so many people who are working, and they will
ask, for decisions, how to do like this, what should I do? So many things. और लीडर होने के नाते कलीसिया में बहुत सारे कार्य होते हैं और बहुत सारे लोग मुझे निर्णय पूछते हैं कि मैं किस तरह से उनको बताना है करके. So during those times, sometimes I get irritated. और कुछ समय पे मैं खिजा जाता हूँ. Right? Maybe something is not right. I get irritated. और कुछ ऐसा कुछ होता नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाता है. Suppose I'm standing there and they project some worship song here. और मैं वहां पे खड़ा है और वो लोगों ने वर्शिप सॉन्ग मतलब आराधना गीत यहाँ पे बता Suppose दिया. spelling is not correct. उसमें शब्द ठीक नहीं हो गए I don't like that. तो मुझे अच्छा नहीं लगता है. Why can't they write correct spelling? क्यों वो लोग सही उसका स्पेलिंग लिख नहीं सकते. Right? So if things are not done properly, I get irritated. अगर कोई भी वस्तु को ठीक रीति से नहीं किया तो मुझे गुस्सा आ जाता है. लेकिन I have to address it in a very calm and loving way. मैं क्रोधित हो जाता हूँ लेकिन फिर भी मुझे वो समस्या को प्रेम पूर्वक उनको संबोधित करना पड़ता है. Am I irritated? Yes, but I have to let the Holy Spirit control my emotion. क्या मुझे तकलीफ हो रहा है? हाँ, लेकिन मुझे क्या करना है? पवित्र आत्मा के जरिए मेरे स्वभाव को नियंत्रण में लाना है. I understand. क्या आपको समझ में आ रहा है? I'm just giving that as an example, but sometimes there are bigger things that that go wrong, and even in that situation, I have to let the Holy Spirit help me walk in love, in joy, in peace. और कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये छोटी बात, लेकिन कभी बड़ी बातों में उनसे गलती हो जाती है, लेकिन उस समय भी मुझे पवित्र आत्मा के जरिए मेरे स्वभाव को नियंत्रण करना पड़ता है और मुझे प्रेम, आनंद और धीरज के साथ कार्य करना पड़ता है. That means our emotions must be submitted to the Holy Spirit. इसका अर्थ ये है कि मेरा जो भावना है पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होना चाहिए. Of course, we have emotion. We feel angry, or we feel upset about something, or we are not happy about something. But the fruit of the Spirit is love and joy and peace. Right? So we have to let the Holy Spirit control us. जायज है हमारे अंदर कुछ भावनाएं होगी, कभी हम क्रोधित होते हैं, कभी हम नाराज होते हैं, कभी कभी तकलीफ होता है, लेकिन हमें क्या करना है? ये सारे बातों को न करते हुए पवित्र आत्मा के संयम से प्रेम, आनंद, शांति के साथ अपने स्वभाव को इसके नियंत्रण में लाना है. So the same is true in a marriage. Sometimes the husband might say something that might hurt the wife, or the wife might say something that irritates the husband. They feel angry or irritated, but you have to let the Holy Spirit control that emotion. कभी कभी पत्नी कुछ पति से कहती है तो वो खेदित हो जाता है, पति कुछ पत्नी से कहता है तो वो खेदित हो जाता है. ऐसे समय में हमें क्या करना है? हमको अपने भावनाओं को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लाना है. Are we going to learn how to do that? हमको सीखना है कि कैसा करना चाहिए. Okay? ठीक है. All right. So let's pause here for a quick break. आइए यहाँ पे विराम लेंगे. We'll take 10-minute break and then we'll come back at 3. We'll restart. 10 मिनट का हम विराम लेंगे, उसके बाद में 3 बजे हम आ जाएंगे. Okay. Thank you. शुक्रिया.